السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، آج اپنی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 96 پہ نظم نمبر 8 رباعیات، میر انیس کی لکھی ہوئی رباعیات، جس کا آج انشاءاللہ مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اپنی درسی کتاب اپنے سامنے رکھیے تاکہ رباعیات سمجھنے میں اور یہ لیکچر سمجھنے میں آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ شروع کرتے پیج 10 میں۔ شاعر کا نام ہے میر انیس۔ رباعی بحر حجز کے ایک خاص وزن میں لکھی جانے والی 4 مصروں پر مشتمل مختصر نظم ہے۔ 4 مصروں میں 3 مصرے پہلا، دوسرا اور چوتھا ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ کبھی چاروں مصروں میں بھی قافیہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اب رباعی بنا ہے ربا سے، اور ربا جو لفظ بنا ہے یہ اربا سے بنا ہے۔ اب ربا اربا اس کے معنی ہوتے ہیں 4، یعنی ایسی نظم جس میں کتنے مصرے ہو؟ 4۔ تو 4 مصروں والی نظموں کو ہم رباعیات کہتے ہیں، جس میں اکثر اخلاقیات کی باتیں ہوتی ہے، دینی باتیں ہوتی ہے، خاص کر کے آخرت کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کی بے ثباتی کا اکثر ذکر رہتا ہے۔ تو یہاں ہم رباعیات پڑھنے جا رہے ہیں۔ رباعی بنا لفظ ربا سے، اربا سے، اور جس کے معنی ہوتے ہیں 4۔ ایسی نظم جس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، اور کیسے ہوتے ہیں؟ پہلا مصرع، اس کے بعد دوسرا مصرع اور چوتھا مصرع یہ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اور ہم قافیہ یا قافیہ کسے کہتے ہیں ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، جس کو انگریزی میں رائمنگ ورڈز کہا جاتا ہے۔ اس صنف کی حیت میں ایسی پابندی لازمی نہیں جیسے غزل کسی بھی وزن و بحر میں کہہ سکتے ہیں، لیکن رباعی اپنی روایات کے مطابق صرف ایک مخصوص وزن کی پابند اور سینکڑوں برس سے پابند رہی ہے۔ کچھ ایرانی شاعروں اور خود علامہ اقبال نے اس وزن کو بدل کر رباعیہ کہی ہیں، جنہیں ترانہ کہا جاتا ہے، لیکن ترانے کا چلن نہیں کے برابر ہے۔ اب رباعی جو ہے یہ غزل سے مختلف ہے۔ غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، لیکن رباعی کیا رہتی ہے کہ رباعی میں ایک ہی بات کو 4 مصروں میں بہتر اور مؤثر اور جامع انداز میں بیان کیا جاتا ہے، جس میں آخرت کی اکثر یاد دہانی اور دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کے مٹنے کا اکثر ذکر رہتا ہے۔ اب جان پہچان میں دیکھو، میر انیس کا نام میر ببر علی تھا۔ 1802 اور ابلک میں 3 لکھا ہے، 2 یا 3 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ وہ میر حسن کے پوتے تھے۔ میر انیس کے والد میر مستحسن خلیق بھی ایک باکمال شاعر تھے۔ یہاں جو میر انیس ہے شاعر جو ہے، ان کو جو شاعری ملی ہے یہ وراثت میں ملی ہے۔ والد بھی شاعر ہے، دادا بھی شاعر ہے، اور خاندان بھی شاعرانہ خاندان ہے، مطلب خاندان میں بہت سے شعراء ہو گزرے ہیں۔ اب یہاں میر انیس جو ہے، ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ میر انیس نے شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی، لیکن جلد ہی مرثیہ گوئی کی طرف مائل ہو گئے۔ اب میر انیس، مرزا دبیر یہ اکثر مرثیے کے لیے بہت زیادہ مشہور ہوئے اور مرثیے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ مرثیہ گوئی میں یہ کمال کے شاعر تھے، میر انیس بھی، مرزا دبیر بھی۔ یہ نمایاں عمدہ مرثیے لکھے جانے والوں میں یا عمدہ مرثیے لکھنے والوں میں یہ سر فہرست ہے۔ تو شروع تو انہوں نے غزل گوئی سے کی، لیکن مشہور کس سے ہوئے؟ مرثیہ گوئی سے بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ ان کے مرثیے فصاحت و بلاغت کے عمدہ ان کی مثال ہے۔ میر انیس کو منظر نگاری، کردار نگاری میں کمال حاصل تھا، یعنی منظر کوئی پیش کرنا ہو، جنگ کا میدان ہو، اکثر مرثیے میں رہتا ہے، یا پھر ہم کلام ہونا ہے، گفتگو ہونا ہے، میدان جنگ کا واقعہ ہو، میدان جنگ میں آمد ہو، تو ایسی جو منظر نگاری ہوتی ہے، کردار نگاری ہوتی ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے، تو تمام جو باتیں وہ مرثیے میں لکھا کرتے تھے اس کو منظر نگاری کہیں گے، اور اس میں کردار نگاری یہ اس میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، عمدہ مثالیں پیش کرتے تھے نا، عمدہ لکھا کرتے تھے، ان کی شاعری بہت زیادہ بہترین اور باکمال ہوا کرتی تھی۔ وہ واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پوری تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ نادر تشبیہ، دلکش استعارے اور آسان زبان ان کے کلام کی خصوصیات ہے، یعنی ان کے کلام میں سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ ان کا کلام بہت آسان، ہر عام و خاص کی سمجھ میں آنے والا، اور ایسا انداز ہوتا تھا کہ اس میں تشبیہات بھی
اور اس پی آر او کا بھی کیا ہوتا تھا، بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا۔ انیس کا انتقال 1874 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا ہے نا، تقریباً 72 سال کے بعد وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اب دیکھیے مرثیہ نگار کے ساتھ انیس نے ربائی کو کی حیثیت سے بھی اپنا مقام حاصل کیا، اور ان کی رباعیات یہاں پڑھنے جا رہے ہیں جس میں زیادہ تر ذکر آخرت اور دنیا کا ذکر کیا گیا کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کا ذکر ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ان کی رباعیوں میں عام طور سے عشق حقیقی، اللہ کی وحدانیت، اب وحدانیت لفظ بنا ہے واحد سے بھی اور وحدت سے بھی بنا ہے، واحد سے بھی بنا وحدت سے بنا ہے۔ اب واحد کہتے ہیں تنہا کو، اکیلے کو، اور وحدت بھی کہتے ہیں ایک اکیلے کو ماننا، جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ وحدت ہے، ایک اکیلے کو ماننا، جیسے ہم کہتے ہیں قل ھو اللہ احد، تو اس میں جو تذکرہ آتا ہے، اس میں ذکر آتا ہے وحدانیت کا، آتا ہے واحد کا، آتا ہے احد کا، جس کو کہتے ہیں احد یعنی جس کا کوئی دوسرا نہیں، صرف ایک، قل ھو اللہ احد، اسی سے وحدانیت بنا ہے، اسی سے وحدت بنا ہے۔ یعنی اگر اس کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ عشق میں وحدت کا مزہ ملتا ہے، عشق میں وحدت کا مزہ ملتا ہے، اگر عشق سچا ہو تو بندے کو خدا ملتا ہے، تو واحد، احد اور وحدت۔ پھر اس کے بعد دنیا کی بے ثباتی، فکر آخرت اور اخلاقی قدروں کے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اب عشق حقیقی یعنی ایسا عشق جو بندے کا تعلق اللہ سے جوڑ دے، اس کو کہا جاتا ہے عشق حقیقی، جسے ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ عشق میں وحدت کا مزہ ملتا ہے، اگر عشق سچا ہو تو بندے کو خدا ملتا ہے، اس کو عشق حقیقی کہیں گے۔ پھر یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا کی بے ثباتی یعنی دنیا عارضی ہے، اور آخرت کی فکر کہ اس کو چھوڑ کر جانا ہے، اور آخر میں جو ہے دائمی زندگی ہمیں بسر کرنا ہے، جو عقبہ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس کے یہاں بارے میں بیان کیا گیا۔ اب جتنی بھی یہاں ہم رباعیات پڑھنے جا رہے ہیں، یہ رباعیات میر انیس کی ایک کتاب ہے، اپنی لائبریری میں موجود ہے، الحمدللہ یہ تمام رباعیات اس کتاب میں موجود ہے۔ آئندہ انشاءاللہ موقع ملا تو کتابیں آپ کو انشاءاللہ پڑھنے کے لیے بھی دی جائیں گے۔ اب شروع کرتے ہیں پہلی رباعی۔ کیا سوچ کے اس دار فنا میں آئے، آفت میں پھنسے دام بلا میں آئے، اس طرح آدم سے آئے دنیا میں انیس، جیسے کوئی کارواں سرا میں آئے۔ اب یہاں پہلا لفظ دیکھو دیا گیا ہے دار فنا۔ اب دار فنا، دار کہا جاتا ہے گھر کو، فنا کہا جاتا ہے فنا ہونے والے کو، یعنی یہاں جو دنیا کو دار فنا کہا گیا ہے، اور دنیا کو دار فنا کہنے کا مطلب یہ جو گھر ہے، یہ جو دار ہے، یہ گھر ہے، یہ فنا ہونے والا گھر ہے، یہ مراد دنیا، دار فنا یہاں مراد کیا آئے گا، دنیا۔ پھر لفظ آیا دام بلا، کیا لفظ آیا دام بلا، دام کہتے ہیں فن، دیکھو اب یہاں کہا گیا دام بلا کہا گیا، لیکن یہاں دیکھنا آپ کو یہ ہے کہ میم کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، اور میم کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے ہم اس کو دام میں پڑھ رہے ہیں، میم کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے تو زیر اضافت کہا جاتا ہے۔ تو اکثر کبھی رباعیات وغیرہ دی جاتی ہے اور دو لفظ دیے تھے، تو اس میں کسی کے نیچے اگر زیر ہوگا تو پوچھا جاتا ہے اس میں سے زیر اضافت والے الفاظ چن کر انتخاب کر کے لکھے، تو جس لفظ کے نیچے زیر ہوگا اس لفظ کو اس کے بعد والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھایا جاتا ہے، جیسے یہاں لفظ دیا دام بلا۔ اب اگر پیپر میں آ گیا کہ زیر اضافت والا لفظ کا انتخاب کیجئے، تو لفظ ہے دام بلا، یعنی جس حرف کے نیچے زیر ہوتا ہے یا جس لفظ کے نیچے زیر آ جاتا ہے، خاص کر کے حرف کے نیچے، تو وہ پورے لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، جیسے لفظ دام ہے لیکن زیر ہے، اس کے لیے دام بلا۔ پھر اس کے بعد کیا آیا کہ آدم، آدم یعنی اس کا مطلب عین سے ہے، آدم عین سے آیا ہے، اس کے لیے آدم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں دیا گیا ہے کہ آدم جو ہے، تو آدم کے لغوی معنی تو ہوتے ہیں کہ نہ ہونا، جیسے ہم لوگ کال آدم کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ یا یہ چیز دنیا سے کال آدم ہو گئی، تو اس کا نہ ہونا۔ لیکن آگے اور ایک لفظ آیا کارواں، کیا لفظ آیا کارواں۔ اب کارواں کے معنی ہوتے ہیں قافلہ۔ پرانے زمانے میں، پرانے دور میں قافلے ایک جگہ سے روانہ ہو جاتے تھے، لوگ اس میں ملتے چلے جاتے تھے اور قافلہ روانہ ہو جاتا تھا، کارواں کہتے تھے۔ اب اور ایک لفظ ہے سرا۔ آج کے دور میں ہم دیگر علاقوں میں یا شہروں میں جاتے ہیں، تو ان شہروں میں جانے کے بعد
उन शहरों में हमें अगर कहीं रुकना हो तो जिसको हम लोग लॉज कहते हैं, होटल कहते हैं, जहाँ हम लोग रुकते हैं। पुराने जमाने में जगह जगह सराय बनाए गए थे। उन सरायों में, जैसे आज के दौर में उसको मुसाफिर खाना कहेंगे, तो मुसाफिर खाने बनाए जाते हैं, इसको सराय कहा जाता है। अब शायद शेर में कहना चाहते हैं या बयान करना चाहते हैं, क्या सोचकर हम इस दुनिया में आए थे, ये सोचकर हमको दुनिया में भेजा गया था, मतलब दुनिया में आए थे कि हमको बताया गया था दुनिया में हमें करना क्या है, आखिरत की तैयारी करना है। लेकिन यहाँ आने के बाद दुनिया के कामों में इस तरह फंस गए, दामे बला में इस तरह से फंस गए, दाम नहीं जाल में ऐसे इस तरह से फंस गए कि हमको आखिरत की याद नहीं रही, हम दुनिया में फंस गए। हालांकि दुनिया का उन्होंने जिक्र किया है कि दुनिया कैसी है, एक सरा है, हमारा काफिला है, हम दुनिया में काफिले की सूरत में आए हैं, मतलब मुसाफिर की तरह आए हैं। मुसाफिर सरा में यानी मुसाफिर खाने में एक रात के लिए, 2 रात के लिए या चंद लम्हों, चंद घंटों के लिए आराम के लुत्फ है, उसी तरह हम दुनिया में आए हैं और इस दुनिया को छोड़कर जाना है। मुराद दुनिया आर्जी है और आखिरत दायमी है, दुनिया छोड़कर हमें जाना है। यानी पूरे पहली रुबाई का जो रुबाई जो है उसका मतलब ये है कि शायर इस रुबाई में कहना चाहते हैं कि हमें दुनिया में भेजा गया था आखिरत की तैयारी करने के लिए, लेकिन हम दुनिया में आए और दुनिया की जाल में फंस गए और इस तरह से फंस गए कि हम आखिरत को भुला बैठे। हालांकि दुनिया छोड़कर जाना है, कुल्लु नफ्सुन जायकातुल मौत, लेकिन दुनिया को छोड़कर जाना ही जाना है। लेकिन दुनिया की जाल में ऐसे फंस गए कि ऐसा लगता है इंसान इस तरह से कोशिश कर रहा है कि जैसे उसको दुनिया में हमेशा रहना है। अब देख कितना अच्छा शेर आ गया। दूसरी रुबाई, अंदेशे बातिल सहर व शाम किया, उगबा का नहाय को सरे अंजाम किया, नाकाम चले जहां से अफसोस अनीस, किस काम को या आए थे क्या काम किया। देखो पहला लफ्ज आया अंदेशा। अंदेशा कहते हैं फिक्र को। अंदेशा किसको कहते हैं? फिक्र को। अक्सर हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, मुझे ये अंदेशा है कि आज हमारा ये काम ठीक नहीं होगा, मुझे ये फिक्र है। उसके बाद बातिल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बातिल। बातिल कहते हैं नाहक को। बातिल किसको कहा जाता है? नाहक को। बातिल कहते हैं नाहक को, हक का क्या है बोलो? अपोजिट है, बातिल। दूसरा लफ्ज आया क्या? सहर व शाम। 2 लफ्ज आए, एक आया सहर, दूसरा आया शाम। और हमने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं कि शायद जब किसी शेर में ऐसे 2 अल्फाज इस्तेमाल करता है जो एक दूसरे की जिद हो तो उस शेर को सनते क्या कहेंगे बोलो? उस शेर को सनते तजाद कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? सनते तजाद। यहाँ 2 लफ्ज आए हैं, एक सहर आया है और एक क्या आया है? शाम। 2 अल्फाज आए हैं और दोनों अल्फाज एक दूसरे की क्या है? जिद है। फिर आगे क्या दिया बोलो? सर अंजाम किया। अंजाम, सर अंजाम करना कि इंतजाम करना? क्या करना? इंतजाम करना। सर अंजाम करना, इसका मतलब भी क्या होता है? इंतजाम करना। अब देखो रुबाई में शायद कितने अच्छे ख्यालात क्या कर रहा है, बयान कर रहा है। काश ये मेरी समझ में आ जाए और हम सबकी समझ में आ जाए तो हमारी दुनिया और आखिरत क्या हो जाएंगी? संवर जाएंगे। अंदेशे बातिल सहर व शाम किया, उकबा का नहाय को सर अंजाम किया। यानी दुनिया में हम आए हैं तो हमने कोई फिक्र नहीं की, न सुबह की न शाम की, हत्ता के हमने आखिरत का भी कोई इंतजाम नहीं किया। उकबा कहते आखिरत को। उकबा किसको कहेंगे? आखिरत को। फिक्र उकबा की कर आए बेखबर, तो उकबा कहते आखिरत को। तो ये शायर कहना चाहते हैं कि दुनिया में आने के बाद हमने सुबह शाम की कोई फिक्र नहीं की। मुराद आके उन्होंने लिया गया है कि आखिरत की भी कोई फिक्र नहीं की, उसका कोई इंतजाम नहीं किया। लेकिन अब मरने का वक्त करीब आया और मरने के वक्त करीब आने पर शायर कह रहे, नाकाम चले जहां से अफसोस अनीस, किस काम को या आए थे क्या काम किया। यानी जिस काम के लिए दुनिया में आए थे हमसे वो काम हो नहीं सका और अफसोस, अब इस दुनिया से हम कैसे जा रहे हैं? नाकाम चले जा रहे हैं। यानी दुनिया से हम ऐसे बेहाथ चले, खाली हाथ चले जा रहे हैं। इसके हम लोग अक्सर वो शेर सुनते हैं ना, कौन सा? देख ओ सिकंदर के हौसले भी तो आली थे, देख ओ सिकंदर के हौसले भी तो आली थे, जब गया वो दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो यहाँ शायर ये कहना चाहते हम किस काम के लिए आए थे और क्या काम हमने किया? कुछ भी तो नहीं किया, हम आज दुनिया से खाली हाथ जा रहे हैं। इस पर शायर को क्या है? अफसोस है कि जो जिंदगी थी वो गुजर गई, अब हमारे साथ कुछ कोई चीज आने वाली नहीं है। दूसरी रुबाई थी, इसमें भी आखिरत की हमें
याद दिलाई गई कि दुनिया में रहते हुए आखिरत को सामने रखना है और दुनियावी जिंदगी गुजारना है। अब तीसरी रुबाई, जब उड़ गया साया साए जवानी सर से, फिर होगी जुदा न सर गिरानी सर से, कुछ होगा न हाथ पाव मारे से अनीस, जिस वक्त गुजर जाएगा पानी सर से। कितनी अच्छी बात बयान की गई। पहला लफ्ज इसमें दिया गया है सर गिरानी। सर गिरानी की आम लूबी माने होते हैं परेशानी। क्या माने होते हैं? परेशानी। सर गिरानी की माने होते हैं परेशानी। दूसरा लफ्ज यहाँ दिया गया है कि पाव मारे। अब पाव मारे, पाव मारना ये मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पाव मारे दिया गया मतलब बेकरार होना। पाव मारना एक मुहावरा है, बेकरार होना, बेचैन हो जाना। उसके लिए और एक उर्दू का अच्छा लफ्ज है मुज़तरिब होना। फिर आगे दिया है पानी यानी जाएगा पानी सर से। अब पानी जब सर से गुजर जाता है यानी बहुत ज्यादा सख्त आफत नाजिल होना। पानी सर से गुजर जाना क्या? बहुत ज्यादा सख्त आफत आना या सख्त आफत नाजिल होना। अब देखो यहाँ शायद कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। जब उठ गया साए जवानी सर से, हम बचपन हमारा बचपन अब गुजर गया, जवानी गुजर गई, हम बुढ़ापे में पहुंच गए हैं, अब फिर होगी जुदा न सर गिरानी सर से। अब जैसी जवानी खत्म हुई, बुढ़ापा आ गया, कुव्वत यानी जितने हमारे बाजू थे, हमारे जितने भी जॉइंट थे, जितने भी ताकत तवानाई थी, वो सब खत्म हो गई। अब हमारे न ताकत रही न तवानाई रही। आज हम क्या कर रहे हैं? अपनी जवानी गुजर जाने पर पछता रहे हैं, शायद कह रहे हैं। और इसलिए अल्लाह ताला ने कहा, जिसका मफहूम है कि जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 70 सजदों के बराबर है। अल्लाह ताला को जवान की हर चीज यानी जवानी में की गई इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। इसके लिए अल्लाह ताला यानी अल्लाह हमको तौफीक व हिदायत दे कि हम अल्लाह ताला की इबादत हर हाल में करेंगे, जवानी में भी करेंगे, बुढ़ापे में भी करेंगे। कुछ होगा ना हाथ पार मारे से हनीस, यानी अभी बेकरार होने से कुछ होने वाला नहीं है। जब हमारे ऊपर बड़ी आफत नाजिल हो जाएंगी, पानी गुजर जाएगा सर से। तो यहाँ दिया उन्होंने कि छतरी के भरोसे पे निकल आए थे घर से, मालूम न था पानी गुजर जाएगा सर से। उसी को यहाँ उन्होंने बयान किया गया कि अब जवानी चली गई, अब बुढ़ापा आ गया है। अब बुढ़ापे में हम जब अंदाजा लगाते हैं कि पिछली जिंदगी पर, तो अफसोस होता है कि जवानी चली गई है। अब परेशानी करने से, पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। जो गया, जो हुआ सो हुआ, जो बची हुई जिंदगी है उसको कारगर बनाना है। अब हाथ पांव मारने से यानी बेकरार और बेचैन होने से कुछ होने वाला नहीं है। जो वक्त मिला था, वक्त की हमने कदर नहीं की, वक्त ने हमारी नहीं कदर की, और हमारा वक्त क्या हो गया? हमारे हाथ से चला गया, बर्बाद हो गया। फिर आगे उसने कितनी अच्छी बात कही है, क्यों जर की हवस में आबरू देता है। चौथी रुबाई, क्यों जर की हवस में आबरू देता है, नादा ये किसे फरेब तू देता है, लाजिम नहीं अपने मुंह से तारीफ अनीस, खालिस है जो मुश्क आप बू देता है। बहुत अच्छी बात कही है। शायद यह कहना चाहते हैं कि देखो लफ्ज है बू, बू यानी महक, बू यानी क्या? महक, महक यानी क्या? खुशबू। बू यानी महक, महक यानी खुशबू। फिर आगे उन्होंने कितनी अच्छी बात कि क्यों जर की हवस में आबरू देता है। जर यानी माल और दौलत, कि तू माल और दौलत कमाने के पीछे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करता है, क्यों अपनी इज्जत दाव पे लगाता है, क्यों अपनी शोहरत, अपनी कामने, अपना सब कुछ जान माल तमाम यानी अपनी तमाम चीजें लगाता है सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए, अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं करता। नादा ये किसे फरेब तू देता है। अब फरेब देना, फरेब के माने होते हैं धोखा। फरेब के माने क्या होते हैं? धोखा। अब यहाँ और एक बात उन्होंने कही है, नादा। क्या कहा उन्होंने? नादा। अब नादा माने होते हैं नादान, नादा के माने क्या होते हैं? नादान। अरे ऐ नादान, तू किसको धोखा दे रहा है और क्यों धोखा दे रहा है? तेरे धोखा देने से कुछ होने वाला नहीं है। तू दौलत कमाने की खातिर, दौलत हासिल करने की खातिर तूने अपनी आबरू, अपनी जिंदगी, अपना तमाम वजाहत, तमाम चीजें कहाँ लगाई है? तूने दाव पे लगा दी है। लाजिम नहीं अपने मुंह से तारीफ अनीस। बहुत प्यारी बात, बहुत अहम बात उन्होंने कहा है कि इंसान अपनी जुबान से अपनी ही तारीफ करे, ये अच्छी बात नहीं है। और अपनी ही तारीफ हम खुद ही करते रहे, ये अच्छी बात नहीं है। बल्कि हमें क्या करना चाहिए? हमारे लोग ऐसे हमने ऐसे कोई काम करना चाहिए, हमें ऐसे काम से मुंसलिक होना चाहिए, हमें ऐसे काम में मसरूफ होना चाहिए कि लोग पीठ पीछे हमारी क्या करें? तारीफ करे। तो इन्होंने कितनी अच्छी बात की कि हमारे जुबान से हम अपनी ही तारीफ करें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। खालिस है जो मुश्क
आप को बू देता है। यहाँ बहुत अच्छी बात कही, शायरी कहने जो मुश्क होता है, ओरिजिनल मुश्क, खालिस यानी क्या, ओरिजिनल। जो ओरिजिनल मुश्क होता है इसको सूंघने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसका ढक्कन खोल दो, जो ओरिजिनल मुश्क होता है वो बोतल का ढक्कन खोल दो, तो वो महक जो होती है, खुशबू जो होती है, सब जगह क्या आ जाती है, फैल जाती है। लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये इत्र है, ये मुश्क है, ये खुद इसका नाम ये है, बल्कि लोग सिर्फ खुशबू, उन लोगों तक खुशबू पहुंच जाती है, लोग समझ जाते हैं ये मुश्क है। यानी जो ओरिजिनल होता है वो खुद ब खुद पहचाना जाता है, उसके पहचान की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ शायर का कहना यह है कि हम अपनी तारीफ खुद न करें, बल्कि हम काम ऐसे करें कि लोग हमारे पीठ पीछे हमारी तारीफ करें। यानी हम अपना तारुफ खुद पेश न करें, हम काम ऐसा करें कि हमारा काम हमारा तारुफ बने। कितनी अच्छी बात है कि हम अपनी तारीफ खुद न करें, हम लोगों के सामने अपने काम को, अपने जो काम में खिदमत का काम है, काम खुद करें, हमारा काम ही हमारी क्या बन जाएंगी, पहचान बन जाएंगी। जैसे बड़े लोग होते हैं, अच्छे काम करके चले जाते हैं, लोग उनके कामों की वजह से उनको आज भी याद करते हैं, हमेशा याद करते हैं, और बड़े अदब और एहतराम के साथ उनका नाम लेते हैं। तो शायर का कहने का मंशा ये है कि हम ऐसे काम करें कि हमें अपनी का तारीफ खुद करने की जरूरत न पड़े, बल्कि लोग हमारी तारीफ करें। आजादी में आफते असीरी आई, शाही न हुई थी के फकीरी आई, अय्याम शबाब किसको कहते हैं अनीस, मौसम तिफली का था कि पीरी आई। वहां लफ्ज के पीरी से पहले वो लफ्ज के नहीं है, इस तरह का, वो आपकी दरसी किताब नजर नहीं होगा तो लिखो पीरी से पहले के लिखना जरूरी है। तो ये के इस अपनी किताब में नहीं, गलती से प्रिंट मिस्टेक हो चुकी है, प्रिंट मिस्टेक जिसको कहते हैं गलती है, तो हल्की सी गलती है, के लिखना भूल गए। तो यहाँ देखो क्या क्या, फिर से शेर सुन लीजिए। अय्याम शबाब किसको कहते हैं अनीस, मौसम तिफली का था कि पीरी आई। तो के पीरी से पहले के लिखा हुआ है, हमें लिखना है अपनी दरसी किताब में। तो यहाँ शायद इतनी अच्छी बात कहते हैं कि आजादी हर इंसान पसंद करता है, परिंदा हो, इंसान हो, चरिंद हो, परिंदा, हर जानदार क्या चाहता है कि मुझको आजादी मिले, और आजादी पसंद करता है। हर मुल्क वाले चाहते हैं हमें आजादी हो, हर बच्चा चाहता है मुझे आजादी मिले, और हर जानदार चाहता है कि मुझे आजादी मिले। शायर कहना चाहते हैं कि हम आजादी भी थे, लेकिन आजादी में रहते हुए हमें असीरी आई। क्या आई बोलो, असीरी आई। असीरी बना है असीर से, किससे बना है बोलो, असीर से। और असीर कहते हैं कैद को, कैदी जिंदगी को या कैद को कहा जाता है असीरी। तो शायर यहाँ कहते हैं कि आजादी में आफते असीरी आई। आफत कहते हैं मुसीबत को, अब जैसे इससे पहले लफ्ज आया था बला, मुसीबत, मुश्किल, आफत, ये तमाम चीजें किसमें आ जाती है बोलो, आफत में। तो शायर कह रहे कि आजादी में आफते असीरी आई, शाही न हुई थी के फकीरी आई। अब फकीरी आई मतलब है कि तवंगरी ना आई, तंगदस्ती आई। क्या आई, तवंगरी ना आई बल्कि तंगदस्ती है। शायर कहना चाहते हैं कि हम आजाद रहना चाहते हैं, आजादी हमारे फितरत में लिखा हुआ है, और हर इंसान आजादी चाहता है। ये भी कह रहे हैं कि हमको आजादी चाहिए थी, आजादी में हम रहना चाहते थे, लेकिन आजादी के ही दौर में हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ा, असीर या असीरी यानी कैद की जिंदगी गुजारना पड़ा। तो ये मुराद हुआ कि कैदी की जिंदगी है लेकिन बादशाह है, लेकिन जिंदगी कैद की है। तो ऐसे दौर में कैद की जिंदगी हमारे लिए क्या बनेगी, वो फकीरी बनेगी, तवंगरी नहीं बनेगी, तंगदस्ती बनेगी। अय्याम शबाब किसको कहते हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है, शबाब, अय्याम शबाब। अब शबाब कहा जाता है जवानी को, शबाब किसको कहते हैं, जवानी को कहते हैं। कि अय्याम यानी दौरे शबाब किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं अनीस, अपने आप से मुखातिब है। शायर हमेशा आखिर में तखल्लुस इस्तेमाल करता है, हमें लगता है कि अपने आप से मुखातिब है, लेकिन ये सबसे मुखातिब है। यानी शायर जो आखिरी शेर कहता है ये अपने लिए कहता है, लेकिन उससे मुराद तमाम लोग आ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि अय्याम शबाब किसको कहते हैं अनीस, यानी शबाब यानी जवानी का दौर किसे कहा जाता है अनीस, मौसम तिफली का था कि पीरी आई। यानी हमारा दौर कौन सा था, शबाब का, यानी जवानी का दौर था, जवानी का दौर था, शबाब का दौर था, बचपने का दौर था, लेकिन हमने असीरी की वजह से, पाबंदियों की वजह से जवानी का जो दौर गुजरा है वो असीरी में गुजरा। तो तिफली के बाद यानी बचपने के बाद, तिफली लफ्ज है तिफल से बना, तिफली बना किससे लफ्ज, तिफल से बना।
तिफली जो लफ्ज बना है वो तिफल से बना है, और तिफल कहते हैं बचपन को, बच्चे को, बचपने को, तिफली कहते हैं बचपने को। तो कहा गया कि तिफली यानी बचपने का जो दौर था वो गुजरा, उसके बाद जवानी आई, लेकिन आसिरी का दौर आया, कैदी जिंदगी, पाबंदियों वाली जिंदगी गुजारना पड़ा। इसके लिए तिफल के बाद जवानी हमको क्या होती है मालूम ही नहीं हुआ, डायरेक्ट पीरी आई। पीरी कहा जाता है बुढ़ापे को। पीरी किसको कहते हैं? बुढ़ापे को कहा जाता है पीरी। यहाँ कहा गया, क्या कहा गया बोलो? पीरी आई, बुजुर्गी आ गई, बड़ापन आ गया, बुढ़ापा आ गया। यानी हम जवान हुए हमें मालूम ही नहीं हुआ, हमने तिफल का जमाना गुजारा और जवानी में पाबंदियों की जिंदगी थी, इसके लिए डायरेक्ट बुढ़ापा हम पर आ गया। दुनिया की पाबंदियां, दुनिया की चीजें आने की वजह से हम बच्चों के बाद, बचपने के बाद जवानी की वजह हम जवानी में रहते हुए क्या हो गए? हम बूढ़े हो गए। फिर आखिरी रुबाई, ये भी बहुत प्यारी रुबाई है, देखो। 2 दिन की हयात पर अबस गुर्रा है। अबस कहा जाता है बेकार, फुजूल। अबस कहा जाता है बेकार और फुजूल को कहा जाता है। अब देखो आखिरी रुबाई है। 2 दिन की हयात पर अबस गुर्रा है, खुर्शीद न बन खाक का तू जर्रा है, मर्दुम के निहाले जिंदगानी के लिए ये आमद वशुद दम की नहीं अर्रा है। यानी 4 मिसरों में शायर ने इतनी बड़ी बात कर दी है कि अगर हमारी ये समझ में आ जाए कि दुनिया की हकीकत क्या है, तो आज इंसान का रुख बजाय दुनिया के आखिरत पर हो जाएगा, अब्दी जिंदगी पर हो जाएगा, और दुनिया में जो बुराइयां हो रही है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखो कितनी अच्छी बात। 2 दिन की हयात पर अबस गुर्रा है। 2 दिन की हयात यानी जिंदगी, यानी 2 दिन की जिंदगी पर फुजूल और बेकार क्या कर रहा है? गुर्रा है, गुरूर कर रहा है। क्या कर रहा है? तकब्बुर कर रहा है, गुरूर कर रहा है। जिंदगी कितने दिन की है? 2 दिन की। यानी क्या भरोसा जिंदगानी का, यानी जिंदगी का हकीकत देखो क्या है? क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। यानी अभी बुलबुला है, कल क्या हो जाएगा, आज क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा बोल सकते हैं। जिंदगी कितनी है कि बहुत मुख्तसर है। यहाँ शायद कह रहे हैं कि 2 दिन की जिंदगी पर बेकार और फुजूल में क्या कर रहा है? गुरूर कर रहा है, तकब्बुर कर रहा है। खुर्शीद न बन खाक का तू जर्रा है। खुर्शीद कहते हैं सूरज को, कि अपने आप को सूरज मत समझ, अपने आप को बड़ापन या बड़ा आदमी मत समझ, अपने आप को ज्यादा अहमियत वाला, अपने आप को आई एम समथिंग, मैं बड़ा, मैं ये मत समझ, बल्कि तू खाक का एक जर्रा है। खाक का जर्रा है तो मिट्टी का क्या है बोलो? जर्रा है, तिनका है, टुकड़ा है, मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में मिलना है और मिट्टी से उठाया जाने वाला है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। यानी मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी से बने हुए है इंसान, तो अपने आप पर गुरूर मत कर, तकब्बुर मत कर। 2 दिन की जिंदगी है, कब खत्म हो जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। इसके लिए आप अपने इसमें शायर कह रहे हैं कि 2 दिन की जिंदगी को गनीमत जानिए, आखिरत की तैयारी कीजिए, अपने आप को सूरज या अपने आप को बड़ा आदमी मत समझिए, बल्कि अपने आप को हमेशा ये कहिए कि आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई एम एवरीथिंग नहीं कहना है, आई एम समथिंग नहीं कहना है, बल्कि आई कहना है कि आई एम नथिंग, यानी मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ हूँ, जो कुछ दिया है, जो कुछ मेरे पास है वो सब अल्लाह का है, और वो आज मुझे नजर आता है कि मेरे पास है, लेकिन ये कब किसी का हो जाएगा मालूम नहीं। मतलब जिंदगी कब खत्म हो जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं। तो चंद रोजा जिंदगी पर गुरूर नहीं करना चाहिए। मर्दुम के निहाले जिंदगानी के लिए, अब मर्दुम कहा जाता है इंसान को, किसको कहा जाता है? इंसान को। यानी मर्दुम के निहाले जिंदगानी के लिए, मुराद इंसान की जिंदगी के लिए। अब मुराद जिंदगी मर्दुम जिंदगानी के लिए जैसे एक दरख्त है, और दरख्त मुराद दिया गया इंसान की जिंदगी को, कहा गया इंसान की जिंदगी एक दरख्त की माने में। अब दरख्त एक बहुत तना, उसका बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बहुत बड़ा तना है, बहुत बड़ा फैला हुआ तना है। अभी टेबल है, इससे भी ज्यादा बड़ा तना हुआ, यानी तना जो है दरख्त का फैला हुआ है, उससे इंसान को कहा जाए कि इंसान की जिंदगी वैसी है। लेकिन साथ ही साथ उस दरख्त के बाजू में अर्रा लगा, जिसको हम आड़ी कहते हैं, जो इसको लकड़ी को काटने के काम आते थे। तो आप लोगों ने देखे होंगे, ये जो लोग बढ़ई के काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, उनका सिर्फ आड़ी रहती है, जिसे काटते रहते हैं। यानी किसको काटते रहते हैं? लकड़े को काटते रहते हैं, उसको अर्रा कहते हैं, आड़ी कहते हैं उसको। तो उन्होंने कहा कि तना बहुत बड़ा है, लेकिन उसको एक आड़ी लगी हुई है, एक
अपने यहाँ इलाके में उसको आड़ी कहा जाता है, और वो रोजाना वो दरख्त को काट रही है, थोड़ा 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 काट रही है। मुराद एक दिन वो आएगा कि वो आड़ी क्या करेगी, उस दरख्त को पूरा जड़ से मतलब उस तने से काट देंगी, और एक दिन दरख्त क्या हो जाएगा, इतना मोटा होने के बावजूद भी, उसका तना बड़ा होने के बावजूद एक दिन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ भी कह रहे हैं शायद कि इंसान की जिंदगी के साथ वक्त लगा हुआ है, वक्त रोजाना इंसान को काट रहा है। यानी कल का जो जिंदगी का हमारा दिन गया, अगली जिंदगी में अब कल हमारे पास वो दिन फिर कभी जिंदगी में आएगा नहीं। यानी आज जो जिंदगी का दिन कटा, कल जो कट गया वो, अभी जो वक्त अभी तक कटा वो, और इसके बाद आएगा वक्त वो भी, यानी हमारी जिंदगी में गए गुजरा हुआ वक्त फिर हाथ आने वाला नहीं है। ये आमद और शुद्ध धमकी नहीं, अर्रा है। ये देखो इतनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि ये इंसान का आना और इंसान का जाना, आमद और शुद्ध, आना और जाना, कि इंसान की आना, इंसान का आना और इंसान का जाना ये मुख्तसर वक्त के लिए है। ये आरी है, क्या ये अर्रा है, आरी है। आरी क्या कर रही है, इंसान के आने को और जाने को काट रही है। हम रोजाना सुनते हैं और हमें फोन भी आते हैं और ऐलानात भी होते हैं। एक तो फोन पे खुशखबरी आ जाती है कि कोई दुनिया में तशरीफ लाया है, ये खुशखबरी आ जाती है, लेकिन फौरन उसी दिन माइक पे ऐलान भी हो जाता है कि कोई दुनिया से चला भी गया। यानी उसकी इंसान का दुनिया में आना और इंसान का दुनिया से चले जाना, ये क्या है बोलो, पल भर का वक्त है। कितना वक्त है बोलो, पल भर का वक्त है। इंसान दुनिया में आता है और दुनिया से चला जाता है। इस पूरी रुबाई में शायर ने ये कहा है कि 2 दिन की जो जिंदगी है उसको गनीमत जानो, और उसको गनीमत जानकर आखिरत की जो जिंदगी आ रही है उसको कामयाब बनाने और उसको संवारने के लिए दुनिया में ऐसे काम करो कि अल्लाह आपसे खुश हो जाए। दुनिया में आप रोते हुए आए थे, दुनिया से जब चले जाने का वक्त आया तो आप हंसते हुए और अल्लाह से राजी होते हुए, अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल करते हुए, हंसते हुए और खुशी के साथ, अल्लाह ने क्या उसको कहेंगे, खुशखबरियों के साथ और हंसते हुए दुनिया से आप चले जाए। लेकिन आपके जाने की वजह से आपके पीछे पूरी दुनिया आपके लिए आंसू बहाए। ये पूरा मैसेज था इसमें, ये पूरा पैगाम था। अल्लाह इतनी बेहतरीन रुबाइयात पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इससे रिलेटेड या इससे मुंसलिक जो मश्क है वो इसी वीडियो के साथ इंशाअल्लाह आपको रवाना की जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।